السلام علیکم. میں اس وقت اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں، مومن آباد میں، اور میرے حکم میں بول سکتے ہیں ایک عمارت چونکہ برسات کا موسم ہے اور اس کے بعد پھر کراچی میں ہر روز یہ اطلاعات کی آتی رہتی ہے کہ عمارتیں گر کر مسمار ہو جاتی ہیں. تو آج بھی ایک عمارت 2 منزلہ تھی وہ گر کر مسمار ہو گئی، اور جس کے بعد جو ہے وہ لوگ کچھ ملبے کے نیچے دب گئے ہیں اور کچھ کو نکال دیا گیا. اس وقت ریسکیو ٹیم میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہے، اور میں یہاں کے لوگوں سے بات کروں اور آپ کو اس سارے سچویشن سے بھی آگاہ کروں، کیونکہ یہاں لوگ جو ہے کافی پریشان بھی ہیں. اور یہ میں علاقے کی صورتحال بتاؤں تو یہ ریسکیو ٹیمیں، اس کے علاوہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور یہ پولیس اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کمشنر تک جو افسران اہلکار اور ریسکیو ادارے جو ہے وہ موجود ہیں. اور یہ عمارت کا یہ دیکھیں جس طرح یہ دفتر تھا، اس کے یہ تکیے اور کارپیٹس اور سریا، پانی کا ٹینک اور یہ ساری یہاں موجود ہیں. علی ذوالفقار میمن، ڈپٹی کمشنر ویسٹ. اچھا یہ بتائیے کیا واقعہ ہوا ہے، کتنے زخمیوں کو اب تک نکالا گیا، امدادی کارروائیوں کی کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ 6 زخمیوں کو ہم نے بھیجا ہے، ابھی عباسی ہاسپٹل میں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. اسی وقت میں پہنچ گیا تھا، ایس ایس پی صاحب بھی آ گئے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ ڈی ایچ او صاحب وغیرہ موجود ہیں. اور انشاءاللہ ابھی سنا ہے کہ 1-2 ہیں، لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ ہوئے، کیونکہ 5-6 جو کام کرنے والے جو تھے وہی تھے جن کو بھیجا ہے. اچھا یہ جو جگہ منظم ہوئی ہے، یہ کوئی دفتر تھا، کیا تھا یہ این پی کا دفتر تھا. اچھا جی جی. تو آپ کے علاقے کے اندر جو آپ کے زیر انتظام علاقہ ہے، یہاں پر اور مزید ایسی کتنی عمارتیں ہیں؟ کوئی آپ نہیں، ڈینجرس بلڈنگ نہیں تھی. یہ دھماکہ ہوا ہے ہوتا ہے گیس کا، کہتے ہیں کہ ابھی کنفرم تو ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے، لیکن کہتے ہیں گیس کا دھماکہ ہوا ہے، لائن کا یا دھماکہ دیکھ لیتے ہیں. جائزہ لیا گورنمنٹ نے، کیا کہتی ہے گورنمنٹ؟ کیا کوئی دہشت گردی ہے کوئی بھی نہیں ہے، گیس کا دھماکہ ہوا ہے، اور یہ فائنل جب تک یہ ہو جائے گا کلیئر تو پھر پتہ چلے گا. ابھی تک کچھ لوگ موجود ہیں اندر؟ نہیں ابھی سنا ہے لیکن لگ نہیں رہا ہے. پھر بھی چل رہا ہے آپریشن، تو چل رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. کارروائیاں چل رہی ہیں تھوڑا سا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بارشوں کا سیزن چل رہا تھا، تو امیڈیٹلی ایک کال ریسیو ہوئی کہ یہاں پہ کوئی ایک بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے جو ہے نا. امیڈیٹلی پولیس نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ریسکیو اداروں نے رسپونڈ کیا. فرسٹ رسپونڈر واز دا پولیس جو ہے نا. تو یہاں پہ جو عینی شاہدین تھے، اور ان سے یہ بات زخمیوں سے ہمیں پتہ لگی ہے سو فار ابھی تک کہ کوئی بجلی کا جو ہے نا شارٹ سرکٹ ہوا ہے، پنکھے کا کوئی بٹن وغیرہ انہوں نے آن کیا ہے، تو اس سے شاید وہ گیس لیکیج تھی یا کیا چیز تھا، تو اس سے ایک دم سے نا بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے. تو الحمدللہ یہ کوئی رہائشی عمارت نہیں تھی، یہ ایک سیاسی جماعت کا جو ہے نا لوکل آفس تھا. یہاں پہ سنگل اسٹوری پری کاسٹ بلڈنگ تھی تیار کی ہوئی یہاں پہ، تو جو جلدی سے ایک دم سے جو ہے نا کولیپس کر گئی. تو جو سیاسی جماعت جس آفس کو اون کرتی ہے، ان کے جو مرکزی کوارڈینیٹر ہے میرا، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ہم. ان سے بھی ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کہ یہ اس کے اندر کوئی 3 سے 4 لوگ تھے میکسیمم جو ہیں، جو یہاں پہ کام کرتے تھے اور آفس کی چیزوں وغیرہ کو دیکھتے تھے. تو ان کو الحمدللہ ریسکیو کر لیا گیا ہے. ہم 4 زخمی نکال چکے ہیں یہاں سے جو ہے، اور سو فار جو ہے ابھی تک ہمارے پاس کوئی کیجولٹی کی رپورٹ نہیں آ رہی ہے. الحمدللہ اللہ اپنا کرم رکھے. یہ عمارت تو کیا ہوا تھا؟ یہ کوئی بم دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں کافی 4 بندے اس کو ابھی ریسکیو کیا، اسپتال پہنچائے، اور باقی ابھی کام جاری ہے. اللہ نہ کرے کہ اور کوئی ایسا حادثہ پیش آئے. تو دھماکے کی آواز کس نے سنی تھی؟ دھماکے کی آواز تو کافی یہاں تک جتنے بھی گھر ہے وہاں تک آوازیں پہنچی ہے. بہت بڑا دھماکہ تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں پورا بلڈنگ جو ہے نا بلڈوز ہو گیا، سارا بلڈنگ جو ہے نا ایک ساتھ بیٹھ گیا. تو یہ عمارت خستہ حال تھی یا نہیں یہ تو نہیں، بلڈنگ بنی ہوئی تھی، ابھی 2 منزل بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس میں یہ دھماکہ ہوا ہے. 4 بندے اس میں بس ابھی انجرڈ ہے. یہاں کیا ہوتا تھا؟ گھر تھا، رہائشی عمارت تھی؟ ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ صدر کا عبد کبیر کاکڑ صاحب کا آفس تھا، جن این پی کے ہم لوگوں کے آفس تھا، یہ اس میں یہ دھماکہ ہوا ہے. اچھا، تو یہ گیس لیکیج یا شارٹ سرکٹ یا اس طرح کی کوئی ایسی اس میں ایشو نہیں تھا، گیس کا نہیں ایشو تھا، نہ کوئی شارٹ سرکٹ. یہ بم دھماکہ ہے. ابھی انکوائری ہوگا یا جو بھی ہوگا متعلقہ ادارے اس میں کام کریں گے. تو اس میں کوئی آفس کے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو کوئی دھمکیاں مل رہی تھی؟ نہیں کیسے کہہ رہے دھماکہ تھا؟ کوئی ہمارے سننے میں تو نہیں آیا. یہ کیا زوردار دھماکے سے گرا، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہمارا عوامی نیشنل پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا آفس ہے، جدھر ہمارے یہاں پہ ضلع صدر صاحب بھی بیٹھتے تھے کبیر کاکڑ بھائی، اور میں خود بھی یہاں بیٹھتا تھا جبکہ میں یہاں کے وائس پریزیڈنٹ ہوں. یہاں پہ ہمارے ساتھ اور بھی پارٹی کے ذمہ داران آتے تھے، بیٹھتے تھے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ علاقے کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی لالچ کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگیٹڈ دھماکہ ہوا ہے، یہ کوئی معمولی دھماکہ نہیں ہے.
जबकि आस पास और भी आबादी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। और इसके अलावा यहाँ पे DVR भी लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ। गली है फ्लैट R12 गली की दोनों तरफ, तो इस तरफ भी कैमरे हैं और उस तरफ भी उसके DVR मौजूद है। तो इंशाल्लाह इसके हम बाकायदा पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे 4 बंदे थे जो मिले हैं मलबे तले, वो इस वक्त जख्मी है, सीरियस कंडीशन में, और बाकी ऑपरेशन जारी है। अच्छा, चूंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि धमाका नहीं था बल्कि शॉर्ट सर्किट या गैस लीकेज की वजह से। नहीं, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये कोई इस तरह के मतलब कोई वो गैस की वो नहीं है, जबकि यहाँ पे कोई गैस का वो नहीं था। तो अब मैं समझता हूँ गैस का कनेक्शन ही नहीं था आपके जी, गैस का कनेक्शन ही नहीं था। गैस का कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पे गैस है ही नहीं, तो कनेक्शन में गैस कहाँ से आएगा? अच्छा, इस एरिया में गैस आती नहीं है, इस इलाके में गैस आती नहीं है, तो धमाका कहाँ से होएगा? आप अभी पाइप खोल लेते हो, आप देख ले उसमें अगर जरा सा भी गैस हो, अच्छा पूरे इलाके गैस हो जाएगा। लेकिन ये जो है मैं समझता हूँ ये टारगेटेड है और पूरा हमारे वो जो है ना निशाना बनाया गया था। और अब ये हाल है। तो ये इमारत ऐसा तो नहीं था कि बारिश की वजह से खस्ता हाल हो, क्योंकि बरसात की वजह से अक्सर घर गिर जाते हैं। नहीं, ये इमारत जो है ये कोई पुराना इमारत नहीं है। अच्छा, ये अभी तकरीबन ये आज से 4-5 साल कबल बनाया था। ठीक है, चलो थैंक यू। ये यहाँ पर बड़ी इमारत थी, इसी तरह 2 मंजिला इमारत बताया जाता है, और एक साथ ये कि जमीन बोस हुई, और इस इमारत के नीचे आप देख रहे हैं पंखे और तमाम एक रहन सहन का सामान मौजूद था, सोफा सेट, कारपेट्स और तकिए और ये सारी चीजें यहाँ पर, ये नीचे भी आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ मौजूद था। लेकिन इमारत जिस तरह अचानक गिरी और अब तक कुछ अफराद को निकाला जा चुका है, कुछ मजीद निकालने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रही है। और लोग जो यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ये इस इमारत को जो गिरने के बाद यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया था। और इस वक्त ये पुलिस और रेंजर्स मौजूद है। ये है वो कागड़ साहब, पीछे आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये इनका ऑफिस था और इनके बताया जाता है कारोबारी मकासद में इस्तेमाल होता था। दोबारा इस वक्त ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो पार्टी के मकामी लोग हैं उन्होंने शक का इजहार किया है। और लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि गैस लीकेज और डीजल का चीजों की वजह से धमाका हो सकता है, लेकिन तहकीकात इस पर जारी है। ये इंतहाई गुमनाम इलाका है, औरंगी टाउन मोमनाबाद का इलाका है, और इस इलाके की सूरत हाल आपको दिखाई। हम मजीद कोशिश करेंगे, मजीद भी लोगों से बात भी करें और तहकीकात भी बताएं। ये बताइएगा कि किस किस्म की इमारत थी? यहाँ तो सारा सामान मौजूद है, ऐसा लग रहा है कि लोग मौजूद थे वहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ ये एक दफ्तर नुमा था जिसके अंदर कोई 8-10 अफराद थे, तो सुनने में आया था। लेकिन सुबह से जब हम इसके अंदर आए और जब ये धमाके की आवाज आई, तो जब हम यहाँ पे आए तो 4 लोगों को तो हमने यहाँ से निकाल लिया। बाकी हमने काफी कोशिश की कि इसके अंदर अगर हो सकता है अंदर जो है ना इसके अंदर लोग मौजूद हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शख्स हमें नजर नहीं है इसके अंदर। लेकिन 4 अफराद को जो जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर चुके हैं। क्या वजह बताई जा रही है, किस वजह से धमाका हुआ होगा? सर इस वक्त कोई वो नहीं है, मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ तंजीमें जो है इस वक्त यहाँ मौजूद है और काम जारी है, आपके सामने है। तो अब किस नोयत का ये तो बाद में पता चलेगा कि ये मामला आखिर हुआ कैसे। ठीक है, चले आपका बहुत शुक्रिया। अल खिदमत के जो खिदमतगार हैं, रजाकार हैं, वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं। और ये इस इमारत में पूरा सामान रहन सहन का मौजूद था और इस इमारत के अंदर CCTV कैमरे भी लगे गए हैं, क्योंकि इलाकाई ओहदेदार का ये कहना है कि इस इमारत में किसी को टारगेट किया गया है, इस इमारत को टारगेट करके निशाना बनाया गया है, उनका ये दावा है। गवर्नमेंट का कहना है कि टारगेट नहीं बल्कि ये इमारत परिकाश थी, बरसात का मौसम था, कल रात शदीद बारिशें हुई हैं कराची में, तो इस वजह से भी मुमकिन तौर पर ये इमारत मस्मार हो सकती है और गैस लीकेज वो शॉर्ट सर्किट का भी जो है वो दावा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह ये इमारत मस्मार हुई है, वो लगता नहीं है कि गैस लीकेज से इतना बड़ा हिस्सा एकदम मुनद्दम हो जाए, गिर जाए। और जिस तरह की चूंकि इस इमारत का स्ट्रक्चर मौजूद है वो मुकम्मल तौर पर मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट के इदारे, पुलिस और तहकीकात करने वाले जो इदारे हैं वो अपनी तहकीकात करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। काशिफ भाई, क्या क्या देखा आपने? सच में क्या क्या देखा आपने? इब्तदाई तौर पर जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि सिर्फ पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी, उसके अलावा कोई रेस्क्यू टीमें नहीं थी। और अब जो है सूरत कुछ यूं कि 5 अफराद को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है।
एक हैवी मशीनरी पहुंची थी, अब हम देख रहे हैं कि एक और हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है। 2 हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो यहाँ से पहले मलबा हटाया जा रहा है, साथ साथ सर्चिंग के अमल को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्राउंड +1 ये इमारत थी, मोमिनाबाद 4 नंबर का ये इलाका है, जहां अब से कुछ देर कबल पहले एक गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है, एक शख्स झुलस कर जख्मी हुआ है, जबकि 4 अफराद जो दीगर जख्मी हुए हैं वो चोटें लगने से जख्मी हुए हैं। तो इन तमाम तर लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। तो क्या बताया जा रहा है कि किस वजह से इमारत में मार हुई होगी? देखिए, इब्तदाई तौर पर जो SSP वेस्ट भी है या फिर दीगर रेस्क्यू इदारे हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पहले गैस लीकेज हुई है, लीकेज के दौरान ही जो है वो एक जोरदार धमाका हुआ, ये मुकम्मल तौर पर इमारत जो है वो जमीन बोस हो गई और इस इमारत के अंदर सियासी जमात का दफ्तर मौजूद था और उस दफ्तर के अंदर 5 से 7 लोग थे। 5 लोगों को तो यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अब 1 से 2 अफराद मजीद जो है वो इतलात आ रही है कि मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है। ठीक है काजल भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मशीनरी को मजीद पहुंचाया जा रहा है इस इलाके में और मलबा हटाया जाए ताकि जो शक जाहिर किया जा रहा है कि मजीद अफराद भी यहाँ मलबे के नीचे हो सकते हैं तो उनको भी निकाला जाए। तो इसके लिए ये है कि ये मशीनरी को मंगवाया गया है और रास्ते क्लियर कराया जा रहा है। एक कराची में असल में कल्चर बड़ा आम है कि जो इमारतें हैं उनकी बनाने के टाइम जो है देखा नहीं जाता और ना ही कोई चेक करने वाला होता है कि क्या इस वक्त इमारत की क्या सूरत हाल है। तो उसके बाद आए रोज इस तरह के वाकयात रूनमा होते हैं कराची में कि 4 मंजिला इमारत, 5 मंजिला इमारत, 8 मंजिला इमारत या फिर 2 मंजिला इमारत जो है छत का हाल होने की वजह से मस्मार हो जाती है, जिसमें कई लोग अपनी जान पे चले जाते हैं। इस इमारत में फैमिलीज तो मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लोग 7 से 8 मौजूद थे, जिन जख्मियों को कुछ निकाला जा चुका है और उसके बाद फिर मजीद ऑपरेशन का अमल जो है दिखाता हूँ मलबा हटाने का काम जारी है। और ये प्रॉपर एक फंक्शनल इमारत थी और ये टीमें भी आई हुई हैं, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीम है कि जिस तरह खदशे का इजहार किया जा रहा है वीडियो में आपने सुना कि मुमकिन तौर पर बम धमाका हो सकता है। उसके बाद ये इमारत गिरी चूंकि पार्टी के लोग यहाँ की जो सियासी जमात है अवामी नेशनल पार्टी जिसको ANP कहते हैं, उनका मकामी दफ्तर मौजूद था। तो उसके बाद उनका अमला यहाँ उनके लोग जो है एक तो मौजूद थे। तो उसके बाद ये उनका ये कहना है कि इमारत बम धमाके से गिरी है, उनका ये दावा है। तो उसको चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट की रेस्क्यू की टीमें हैं और खासतौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीमें हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड की वो टीमें यहाँ मौजूद हैं और चेक कर रही है। और यहाँ पर पुलिस और यहाँ के इलाका में का भी बड़ा रश लगा हुआ है, लोग इमारतों की छतों के ऊपर भी खड़े होकर देख रहे हैं, आस पास बच्चे भी देख रहे हैं। ये दोनों इमारतें बराबर रहती हैं, उनके सेंटर में जो इमारत है वो गिर कर मस्मार हुई है।